Hallelujah. Praise God. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. یسوع کے نام سے تیری حضوری کو مانگتے ہیں. تیرے روح القدس کے مشتاق ہیں. ہمیں تیری ضرورت ہے خداوندوں کے خدا, رشتوں کے رب. آؤ ہمارے بیچ میں آؤ پاک خدا. روح القدس ہمارے بیچ میں آ. ہاللیلویا. راتا دارا یہ سندرا یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے ہم تجھے مانگتے ہیں خدا. روح القدس کی قدرت کو چاہتے ہیں. پاک روح کی گہری معموری کو ہم مانگتے ہیں. اپنا جلال ظاہر کر. آج شام خداوند تیرے روح القدس کو مانگتے ہیں, کلام کو مانگتے ہیں, معموری کو چاہتے ہیں, حضوری کو چاہتے ہیں. خداوند آج چھو کر بندنوں کو کھولنا. خداوند تو عظیم ہے. چھو کر بندنوں کو کھولنا خداوند تیری شکر گزاری. ہاللیلویا. رسندر رتا جب تو چھو جاتا ہے تو خداوند یسوع کے نام سے جاتا ہے. خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم تیری بندگی کر سکیں, تیری شکر گزاری کر سکیں. یہوہ پاک خدا خداوند تیرے روح القدس کی ہم تجھے مانگ لیتے ہیں. خداوند تیری پاک حضوری کو اپنے درمیان مانگ لیتے. تیرا روح القدس ہمیں چاروں طرف سے دے. تیرا پاک روح ہمیں چاروں طرف سے دے. خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں. In the name of Jesus, in the name of Jesus, yes, Lord, yes, hallelujah, hallelujah. praise God, hallelujah, hallelujah, praise God. Raka samba dabara. خداوند پاک خدا, ہم اس وقت تیرے روح القدس کی معموری کو چاہتے ہیں. ہماری مدد کرنا, رہنمائی فرمانا. خداوند تیرا قدرت والا, شفقت والا ہاتھ بڑھے. آج شام ہم بلیسنگ کو حاصل کریں. آج شام تیری برکت اتر آئے. آج شام تیرا مسا اتر آئے. آج شام تیرے کلام کی بارش ہو, تیرے پاک روح کی بارش ہو. خداوند آج جتنے خداوند تیرے کلام کو سنیں, دیکھیں, اور خداوند پاک خدا تیری حضوری کو اپنے درمیان محسوس کریں. اے قادر مطلق خدا, یسوع کے نام سے ایک ایک پر تیری برکت کو مانگتے ہیں, تیری برکت کو چاہ لیتے ہیں. یسوع کے نام سے خداوند اپنے بچوں کو بلیس کرنا شروع کر دے. اے قادر مطلق خدا, جو دیکھنے والے ہیں تو پاک خدا ان کو چھونا شروع کر دے. یسوع کے نام سے اے قادر مطلق خدا, یہ زندگیاں برکت کو ریسیو کرنا شروع کریں. ہاللیلویا. رب تارا رکسا. یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. رب تارا, ہم تیری حضوری کو کثرت کے ساتھ مانگیں. تیری حضوری کو کثرت کے ساتھ مانگیں. ہاللیلویا. رسندر ربا بابا. ہاللیلویا. رسندر. ہم پیچھے ہٹے اور تو آگے آئے. ہم چھپ جائے اور تو ہم میں نظر آئے. ہم ہٹے اور تو بڑھے میرے پاک خدا. ہاللیلویا. رسندر. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Hallelujah. Rabatara rakasa. Hallelujah. Rasanda rabatara. تیری معموری کو چاہتے, تیری معموری کو چاہتے, تیری معموری کو چاہتے. Hallelujah. خداوند تو برکت دینا شروع کر. خدا تیرا ہاتھ بڑھے, تیری حضوری اس جگہ پر کام کرے. تیرا جلال ظاہر ہو خدا. رحم کر, رحم کر, رحم کر. Praise God. Rakasanda ratalara. یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے, یسوع کے نام, یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. پریز گاڈ. خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور سبھی کچھ پا لیتے ہیں. آمین. آمین.
खुदावन यसु मसीह के अजीम और जलाली और फाते नाम में आप सबों की सलामती हो। आज शाम फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं, और इस प्रोग्राम के अंदर, इस मीटिंग के अंदर आपको खुदा की हजूरी में हम ईमान रखते हैं कि सलामत होंगे और सलामती के साथ अपने अपने खानदानों के अंदर महफूज होंगे। और खुदावन के हजूर हम उम्मीद रखते हैं कि आज शाम भी कल की तरह, परसों की तरह आज शाम भी आप बरकत को रिसीव करेंगे। आज शाम भी आप खुदा की मामूरी को हासिल करेंगे। आज शाम भी बहुतों के आज बंधन खुल जाएंगे। आज शाम बहुतों के जुबे खुल जाएंगे। आज शाम यीशु के नाम से बहुतों की शिफा जारी और सारी हो जाएगी। खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा देगा, रिहाई देगा। आपके घर के अंदर बरकत आना शुरू हो जाएगी। आपके रुके हुए काम यीशु के नाम से जारी और सारी हो जाएंगे। हम ईमान रखते हैं कि आज शाम पाकरू बंदरों को खोलेगा और कुशीदा बीमारियां यीशु के नाम से आज खत्म होगी। हम ईमान रखते हैं वो जिंदगियां, चाहे वो मर्द है, औरत है, कुशीदा बीमारियां यीशु के नाम से आज खत्म होंगी। हम ईमान रखते हैं आज यीशु के नाम से और खुदा के पाक की कुदरत के वसीला से आज हम ईमान रखते हैं कि कुशीदा बीमारियां यीशु के नाम से खत्म होगी। बेटियां आजाद होगी, बहनें आजाद होगी, भाई आजाद होंगे, नौजवान आजाद होंगे। हम ईमान रखते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू भाई अब्बास साहब, थैंक यू। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अजीजों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि खुदा आपको भी और आपके वसीला से दूसरों को भी बरकत के साथ नवाजे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। रब्बा राका संदा रब्बा। भाई तारक साहब, थैंक यू सर। खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया। पाक खुदा तेरा शुक्र। रोहित सिंधी साहब, थैंक यू सर। खुदा आपको ब्लेस करे। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम सारे मिलकर आज शाम बरकत को हासिल करें। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अगर आप नाम पढ़ते जाए तो अच्छा होगा। थैंक यू कीजिएगा सबका। खुदा इनको ब्लेस करे। हालेलुया, प्रेज गॉड। राका संदा यीशु के नाम से खुदा की हुजूरी के अंदर आज हम शादमानी को महसूस कर रहे हैं और यकीनन ये शादमानी आपकी जिंदगियों तक, आपके घराने तक, आपके खानदानों के अंदर आज रूह कुद्दस के वसीला से इत्मीनान, खुदा का मसा आपके खानदानों के अंदर काम करेगा और खुदा आपको ब्लेस करेगा। आमीन। हम ईमान रखते हैं क्योंकि खुदावन यकीनन हमें हर सुबह, हर शाम, हर वक्त जब भी हम उसे पुकारते हैं एक नई शादमानी, एक नई ब्लेसिंग के साथ हमें नवाजता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। राका संदा यीशु की। आज शाम आप क्या कहना चाहते हैं? आप मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, फिर से खुदावन ने ये मौका बख्शा कि हम फिर से आज इसी तरह से मीटिंग का आगाज़ कर सकें। और मैं यकीन रखती हूँ, ईमान रखती हूँ कि आप आज बरकत को रिसीव करेंगे। आज के कलाम के वसीला से, दुआओं के वसीला से आप अपनी बरकत को रिसीव करेंगे और खुदा आपको और आपकी फैमिलीज को खूब अपनी बरकत के साथ नवाजेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। और शुक्रगुजार हूँ कि इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, जो वॉच कर रहे हैं और जो कमेंट्स कर रहे हैं, उनके लिए भी हम थैंक्सफुल हैं। और खुदा आपको बरकत दे। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि दूसरे भी इस वीडियो के वसीला से बरकत को हासिल कर सके, इस इबादत की वो बरकत को रिसीव कर सके। आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। सब सर खुदा के झुक चुकेंगे और दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिए और हमारे साथ मिलकर खुदावंद के हुजूर दुआ करना शुरू कीजिए। आप जिस जगह पर मौजूद हैं, जिस जगह पर आप देख रहे हैं, जहां भी मौजूद है, आइए ईमान के साथ दुआ करना शुरू कीजिए, ईमान के साथ बोलना शुरू कीजिए और हमारे साथ मुत्फिक हो, हमारे साथ एक दिल हो जाए, एक सोच हो जाए, ताकि आज शाम हम खुदावंद की हजूरी के अंदर बरकत को हासिल करें। मैं खुदा की खादमत से दुआस करूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई करे। हालेलुया। जिंदा आसमानी खुदा, हम फिर से तेरे कदमों में झुकते हैं, तेरे चरणों में अजब सुकून है। और खुदावन जब हम तेरे पास आ जाते हैं तो खुदावन हर तरह का बंधन जो है यीशु मसीह के नाम से टूट
होता है और हम मखलसी पाते हैं, निजात पाते हैं। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त इन लम्हात के लिए खुदा जो तूने हमें बख्शे, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज खुदा खूब तो अपनी बरकत के साथ हमें नवाजना और खुदावंद दुश्मन इब्लीस के सारे मंसूबों को हम यीशु मसीह के नाम से रद्द करते हैं। इसकी सारी नापाक गुफ्तों को यीशु मसीह के नाम से हम रद्द कर देते हैं खुदा। और आज जब तेरा कलाम नाजिल हो तो खुदा हर तरह का बंधन जुआ टूटे यीशु मसीह के नाम से और खुदावंद जकड़े आजाद हो, रिहा हो, मखलसी पाए, छुटकारा पाए खुदावन और बीमारियां यीशु नाम से बदनों से अलहदा हो खुदा। आज के कलाम के वसीला से तू अजीब और जलाली काम करना खुदावन। आज मैं चाहती हूँ कि खुदावन तू जब अपने कलाम को नाजिल फरमाए तो हर जान बरकत को रिसीव करे, हर शख्स हर फर्द आज की बरकत को रिसीव करे खुदावन और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, क्योंकि खुदावन तू जलाल का बादशाह, तू अजीब मौजज़ात का खुदा है और खुदावन तू हर तरह से खुदा अपने बेटे बेटियों की दुआओं पर अपने कान को लगाए बैठा है और उनका जवाब देता है। हम तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ, तेरी बंदगी, तेरी सताइश करते हैं खुदावन। इस वक्त जितने बहन भाई हमें देख रहे हैं खुदावन, अभी सुन के लिए तेरी ब्लेसिंग्स को, तेरी बरकत को चाहती हूँ खुदा। तू अपने कलाम को नाजिल फरमाता कि आज का कलाम उनके लिए और उनके खानदानों के लिए हो खुदा। और खुदावन तेरे लोग खुदा बरकत को रिसीव करे और आज के कलाम के वसीला से तेरे बच्चे बहुत सा फल लाएं। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, मसीहा के पाक जलाली और सुंदर नाम से सब कुछ मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। थैंक यू। आइए खुदा के हुजूर हम चंद लम्हों के लिए खुदा के कलाम की बरकत को हम हासिल करेंगे और फिर हम आप सबों के लिए दुआ करेंगे, जितने भी आप देख रहे हैं और जो फिर दुआया दरख्वास्तें होंगी हम आपके लिए, आपके ख़ानदानों के लिए या कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप खुदा के हुजूर दुआया दरख्वास्त रखते हैं, हम आपके लिए मिलकर खुदावंद के हुजूर दुआ करेंगे। और आज अपने खुदा के हुजूर हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें बेहतरीन मौका फराहम किया है ताकि हम आज शाम फिर से बरकत को हासिल कर सके और हमारे पास वाहिद एक वसीला है जिसके सबब से हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे तरक्की करते हैं, आगे हम बढ़ते जाते हैं। खुदा के कलाम की कुदरत ही के वसीला से हम हर रोज तसल्ली को, ब्लेसिंग को, शादमानी को और हर तरह की कुव्वत और जोर को हासिल करते हैं। आमीन। आइए खुदा के कलाम को मेरे साथ निकालिए और खोलिए और मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत ग्रंथियों के नाम दूसरा खत और उसका 10 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक हम अपनी हिदायत रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा पढ़ेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत ग्रंथियों के नाम दूसरा खत 10वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक हम खुदा के कलाम को अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे और खुदा की खादमा के साथ मिलकर कलाम मुकद्दस की तलावत को हम सुनेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, मैं पौलुस जो तुम्हारे रूबरू आजिज और पीठ पीछे तुम पर दलेर हूँ, मसीह का हिल्म और नरमी याद दिलाकर खुद तुमसे इल्तमास करता हूँ, बल्कि मिन्नत करता हूँ कि मुझे हाजिर होकर उस बेबाकी के साथ दलेर ना होना पड़े जिससे मैं बाज लोगों पर दलेर होने का कासिद रखता हूँ, जो हमें यूँ समझते हैं कि हम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम तस्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमा बरदार बना देते हैं। मुकद्दस कलाम का पढ़ा सुना जाना हम तमाम के लिए बरकत का बायस ठहरे। आमीन आमीन आमीन। खुदावन के हुजूर हम
शुक्रगुजारी करते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल यहाँ पर उस कलीसिया को खत लिखता है जो करंथस के अंदर मौजूद है। पौलुस रसूल ने करंथस में कलीसिया को कायम जब किया, पौलुस रसूल ने 2 खत लिखे, पहला खत और फिर दूसरा खत। उस जमाना में करंथस की कलीसिया यूनान का एक बड़ा बैन अक़वामी शहर और रोम के सूबा अखिया का सदर मुकाम था। ये शहर माली और फिर तजारती गहमागामी और तरह तरह के मज़ाहिब के लिए बड़ा एक शहर मशहूर था। मगर इसके साथ साथ चारों अतराफ फैली हुई बदकारी और फिर इसके बाद बद अखलाकी के नहायत, जब ये इसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद थी तो ये इस नाम से बदकारी के लिहाज के साथ और फिर बद अखलाकी के तौर पर ये बहुत और नहायत बदनाम ये शहर था। अब खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल इस वक्त इस कलीसिया को ये खत लिखते हुए इस हालत के अंदर उनको मजबूत करता है, कायम करता है और फिर बताता है कि हम जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, हम जब ईमान रखते हैं तो हम अपना दफा करना भी जानते हैं। और पौलुस रसूल कलीसिया को यहां पर मजबूत कर रहा है। पौलुस रसूल यहां पर बता रहा है कि हम इस दुनिया के अंदर रहते तो हैं, जिस्म के अतबार के साथ तुम्हारी मौजूदगी है, लेकिन हम ना तो किसी इंसान से जो हमारे खिलाफ हो, ना किसी वबा से जो हमारे खिलाफ हो, जो ना किसी और अबलीसी कुव्वतों से जो हमारे खिलाफ हो, ना किसी और हथकंडे से जो हमारे खिलाफ हो। हम डरते नहीं हैं, हम अपना दफा करना जानते हैं। पौलुस रसूल यहां पर करंथस की कलीसिया को दर हकीकत यही बताते हैं कि हमें अपना दफा करना है, अपनी खिदमत का, अपने घर का, अपने बच्चों का, अपनी जिंदगी का, अपने पैरोकारों का, और जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं उनको ये अख्तियार मिला है कि वो अपना दिफा कर सकें, वो अपना बंदोबस्त कर सकें। और खुदा के जो लोग हैं ये ऐसे नहीं है। पौलुस रसूल यहां पर फरमाते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, बल्कि हम अपना दिफा करना जानते हैं, अपनी हिफाजत करना खुद जानते हैं। और यहां पर पौलुस करंथस की कलीसिया को यही 10 बात के अंदर, इस लेटर के अंदर, इस खत के अंदर यही फरमाते हैं कि हमें अपना दफा करना है, हमें अपना बंदोबस्त करना है, हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है, हमें अपने ईमान का, हमें अपनी निजात का, और फिर हमें अपनी इबादत का, हमें फिर क्या है अपनी जिंदगी का खुद दफा करना है। यहां पर पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हाँ, हम जिस्म के अतबार के साथ इस जमीन पर मौजूद तो हैं। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हम अगर चाहे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं, वो फरमाता है कि हम अगर चाहे जिस्म के अंदर होकर इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं हैं। खुदा का बंदा पौलुस रसूल थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को ये खत लिखते हुए उनको ये समझाता और सिखाता है कि हमें अपनी खिदमत का दफा करना है, अपने बदन का दफा करना है, अपनी जो वो खिदमत का जो भी हम कर रहे हैं खुदा के ज़ोर और खुदा के नाम से, हमें अपनी अपनी खिदमत का दिफा करना है। और पौलुस रसूल फरमाते हैं हम अगर चाहे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं, मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं हैं। हमारी लड़ाई
जिस्मानी नहीं है। हाँ, हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस्म में होकर हमारा चलना है, फिरना है और बैठना उठना है, खाना पीना है। हम जिस्म के अतबार के साथ क्या करते हैं, हम मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। और हमारी जिंदगी जो गुजर रही है, ये जिस्म में हम जिंदगी को बसर कर रहे हैं, मगर जिस्म के तौर पर हम लड़ते नहीं हैं। इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं है। पौलुस रसूल यहां पर खुदा के खादमों और खुदा की कलीसिया और फिर करंथस की कलीसिया को खास तौर पर, और फिर आज हमारे साथ खुदा कलाम करता है, खुदा हमारे साथ बोलता है। इस जमाना के अंदर जब हम गहमा गहमी के अंदर हैं, हर तरफ चारों अतराफ बदी अरूज पर है, और फिर करंथस की कलीसिया जहां पर मौजूद थी, उस जमाना के अंदर बदकारी और बदखलाकी, ये दोनों हालतों के अंदर बदकारी और बदखलाकी से ये शहर करंथस का शहर बड़ा मशहूर था। आज भी जमाने को जब हम देखते हैं, बदकारी के सबब से और फिर गहमा गहमी के सबब से और फिर बद अखलाकी के सबब से दुनिया इसका कदर आगे निकल चली चुकी है और आगे बढ़ चुकी है और बड़ी एक गहमा गहमी है, और दुनिया मशहूर होती जाती है, जिंदगियां मशहूर होती जाती है इसी सबब से, बदकारी के सबब से, गहमा गहमी के सबब से और फिर बद अखलाकी के सबब से। कई ऐसे लोग जिन्होंने नाम कमाया है, जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहां पर पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हम जो जिंदगी के अंदर जो जिस्म के तौर पर या जिस्म के मुताबिक हम यहां पर जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जो है ये जिस्म के तौर पर नहीं है। इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई के हथियार क्या है, कुछ और है। और खुदा के हुजूर वो है जो किलों को ढा देने के काबिल हैं। आमीन, आमीन। खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है कि हमारे पास जो हथियार है वो जिस्म के तौर पर हम लड़ते नहीं है, और वो हमारे पास हथियार जिस्मानी नहीं है। जिस तरह आज बहुत सारे फौजों के पास लड़ाई के हथियार मौजूद है, सिपाहियों के पास लड़ाई के हथियार बहुत सारे मौजूद है, और इस मुल्क के अंदर अपनी आर्मी को या पुलिस को कोई भी अदारा देख ले, उनके पास अपने अपने हथियार मौजूद है, और वो जिस्म के तौर पर जिस्मानी हथियारों के साथ दुश्मन के साथ वो लड़ते हैं। लेकिन पौलुस रसूल यहाँ पर फरमाते हैं कि हम जिस्म में होकर जिंदगी तो बसर कर रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई क्या है, ये जिस्म के तौर पर नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई के जो हथियार हैं, प्रेज़ गॉड, हमारी लड़ाई के जो हथियार हैं खुदा के नजदीक, किसी और के नहीं, बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल है। आमीन, आमीन। हमारे पास वो हथियार है जो जिस्मानी नहीं है, जो दुनियादारी के लिए नहीं है। जैसे दुनिया के अंदर सिपाहियों के पास, पुलिस के पास, आर्मी के पास हथियार मौजूद है और वो दुश्मन का मुकाबला करते, लेकिन हमारे पास ऐसे हथियार नहीं है, बल्कि खुदा के नजदीक वो हथियार है जो बड़े बड़े किलों को ढा देने के काबिल है। आमीन। और खुदा का बंदा पौलुस फरमाता है कि हम उन हथियारों के सबब से अपना दिफा कर सकते हैं, हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं, अपने ईमान की, अपने दीन की, अपने जो है वो अपने घराने की। हम अपने हथियारों के साथ जो खुदा के नज़दीक किलों को ढा देने के काबिल हैं, हम उनके साथ क्या है, हम मुकाबला कर सकते हैं। और खुदावन का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है कि हमारा दुश्मन कौन है। हमारी लड़ाई जहान के साथ नहीं है, बल्कि उन तारीकी के कुव्वतों के साथ हमारी लड़ाई है जो आसमानी मकामों के अंदर मौजूद है। हमारी लड़ाई जिस्मानी नहीं है, हमारी लड़ाई के हथियार भी कुछ और है, और हमारा दुश्मन वो दुश्मन है जो तारीकी के अंदर है, और तारीकी के अंदर जो नापाक कुव्वतें हैं, तस्वीरें हैं, अबलीस की मुवक्किल हैं, अबलीस की तस्वीरें हैं, और वो जो हमें
कई बार नजर नहीं आती, उनके साथ तारीकी की कुव्वतों के साथ जो आसमानी मकामों के अंदर मौजूद है, उनके साथ हमारा मुकाबला है और हमारी जंग उनके साथ है। ना हमारी जंग खून के साथ है और ना गोश्त के साथ है, बल्कि हमारी लड़ाई क्या है, कुछ और है। खुदा के नजदीक वो हमारे पास हथियार है जो बड़े बड़े किलों को, अबलीस के किलों को, अबलीस के मंसूबे की किलों को, अबलीस की तस्वीरों की किलों को ढा देने के काबिल है। तो हमें खुदावंद का कलाम फरमाता है कि हमारी जंग क्या है, उन नापाकूतों के साथ है, उन नापाकूतों के साथ। इफ्सियों का खत जब हम पढ़ते हैं 6 बाब और उसकी 14 आयत के अंदर लिखा है कि पास पढ़ने में अगर रहनुमाई की जाए तो अच्छा होगा। हमारी जंग किसके साथ है? हम इफ्सियों का खत उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे और खुदा की खादमा पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। ऐ फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। 10वीं आयत, सॉरी। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। प्रेज गॉड। खुदा का बंदा पहली बात कहता है कि हमें गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत में पहले नंबर पर मजबूत बनना है और खुदा के सब हथियार बांध लो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। पहले नंबर पर हमें खुद को मजबूत करना है और किसके साथ? खुदा की कुदरत के जोर में हमें क्या है, मजबूत बनना है और खुदा के सब हथियार बांध लेने। पहले बताया पौलुस रसूल फरमाते कि हमें अपना दिफा करना आता है और हम अपना दिफा करना जानते हैं और हमारी जिंदगी इस जमीन पर जो गुजर रही है, हाँ हम जिस्म के एतबार के साथ जिंदगी को बसर कर रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई के हथियार जिस्म के तौर पर नहीं है, बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। आमीन। तो इसलिए पौलुस रसूल फरमाता है कि हम सब क्या करें, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। और आगे, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। आमीन। खुदा का बंदा फरमाता है कि ताकि तुम बुरे दिनों में मुकाबला कर सको। तो ये आखिरी जब दौर है तो ये दिन अच्छे नहीं है, ये दिन इससे मजीद और बिगड़ेंगे, इससे मजीद और खराब होंगे और दुनिया की हालत बिगड़ती जाती है। लिखा है कि दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती है, लेकिन जो खुदावंद के कलाम पर अमल करता है, कायम रहता है, वो अब तक क्या है, कायम रहेगा। हमें जरूरत है कि अपना दिफा करें ताकि हम अबलीस के मंसूबों पर गालिब आ सके, तारीकी की उन सारी कुव्वतों पर गालिब आ सके। और जब तक हम अपना खुद दफा नहीं करेंगे, अबलीस हर रोज हमारी चौखटों पर आकर चर्चा करेगा, हमें चैलेंज करेगा, हमें दबकाएगा, हमें परेशान करेगा। और वो तस्वीरें जो हमारी बरकत को रोके हुए है, वो आकर हमें हर रोज चैलेंज करती हैं। लेकिन याद रखें, हमें अपना दिफा करना है और दिफा खुदा के उन रूहानी हथियारों के साथ हम अपना दिफा कर सकते हैं। अगर तो हमारे पास रूहानी हथियार मौजूद हैं तो इस बात के लिए खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करते हैं। हमें हमारे पास 24 घंटे रूहानी हथियार होने की बहुत जरूरत है कि हमारे पास खुदा के रूहानी हथियार मौजूद हों।
खुदा के हथियार मौजूद हों और इनके साथ हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं, इनके साथ हम जंग कर सकते हैं। इनके साथ हम सिर्फ जंग ही नहीं बल्कि इनके वसीला से हम फतह को हासिल कर सकते हैं। हम इब्लीस के किलों को डाल सकते हैं, हम इब्लीस के जो वो अड्डों को खत्म कर सकते हैं, हम इब्लीस की सारी मकारी को हम खत्म कर सकते हैं। हमें जरूरत है कि हम अपना दिफा करें, हमें जरूरत है कि हम अपना दिफा करें और इन हथियारों को अपनी जिंदगी के अंदर रखें, अपने घर के अंदर रखें, अपने खानदान के अंदर रखें। जरूरत है। पालूस रसूल फरमाते 14वीं आयत के वो पढ़ेंगे कि हमारे हथियार है क्या, कौन से वो हथियार है जिसके सबब से हमने जंग करनी है। 14 आयत को पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और निजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। और आगे और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। आमीन। पालूस रसूल खुदा का बंदा फरमाता है कि और उन्होंने खुदा के बंदा ने हमें बताया कि हमारे पास कौन कौन से हथियार होने चाहिए जिसके सबब से हम अपना दिफा कर सकते हैं, जिसके साथ हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं, हम दुश्मन की मकारी का मुकाबला कर सकते हैं, हम दुश्मन के ऊपर वार कर सकते हैं, हम दुश्मन की चालों से हम बच सकते हैं। कौन से हमारे पास हथियार होने चाहिए। और इफ्सियों का खत उसका 6ठा बाब और उसकी 14वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो ये सारे के सारे हमें रूहानी हथियार मिलते हैं जिसके वसीला से हम इब्लीस की तारीकी की कुव्वतों पर हम गालिब आ सकते हैं। और हमें अपना दिफा करना है, अपने खानदान का, अपने घराने का, अपने बच्चों का, अपने रिज़्क़ का और फिर अपने मालो दौलत का हमें दिफा करना है। अगर नहीं करेंगे तो इब्लीस हमारी बरकत को छीन लेगा, अगर नहीं करेंगे इब्लीस हमारी शादमानी को छीन लेगा, अगर नहीं करेंगे हमारी बरकत छीनी जा सकती है। और इब्लीस लिखा कि वो मार डालने और चुराने आता है, वो हलाक करने आता है, वो हमें मुसीबत और हलाकत के अंदर डालने आता है। और इसीलिए जरूरत है कि हम अपना दिफा करें, अपने खानदान का, अपने घर का, अपने मालो दौलत का, अपने बच्चों का और फिर रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हम अपना दिफा करें। क्यों हम जिंदगी को बसर कर रहे हैं, हम जिस्म के लिहाज के साथ हम जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई की हथियार कुछ और है। जितने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं उनके पास हथियार मौजूद हैं। और खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर जितने ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, और खुदा ने उनको अख्तियार दिया है कि जाओ इब्लीस के मंसूबों को ढा दो, इब्लीस की सारी कुदरतों पर गालिब हो और सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और उनकी सारी कुदरतों पर गालिब हो। हमें खुदा के जोर इन हथियारों को इस्तेमाल करना है। हमें इन हथियारों को इब्लीस के लिए इस्तेमाल करना है। हमें उन तमाम तारीकी की कुव्वतों के लिए हमें इस्तेमाल करना। अगर नहीं करते तो फिर इब्लीस को मौका मिलेगा, शैतान को फिर मौका मिलेगा, वो वार करेगा। वो बीमारी की सूरत के अंदर, झगड़े की सूरत के अंदर, लड़ाई की सूरत के अंदर, बीमारियों की सूरत के अंदर, पोशीदा बीमारियों की सूरत के अंदर वो आकर हमें सिताएगा, हमें डाउन करेगा, हमारे ऊपर हमला करेगा, हमारे ऊपर जो है वो आकर वो राज करेगा, चैलेंज करेगा। और हमारे बरकत बच्चों की छीनी जाएगी, दौलत की छीनी जाएगी, घर की छीनी जाएगी, शादमानी खत्म होगी, इत्मीनान जाता रहेगा,
اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا دفاع کریں، جس طرح پالوس رسول فرماتا ہے کہ میں اپنا دفاع کرنا جانتا ہوں۔ ہم گو جسم کے اعتبار سے اور جسم کے مطابق اپنی زندگی تو بسر کر رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہم کمتر ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس کچھ ہتھیار نہیں ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ ہاں ہمارے پاس ہتھیار موجود ہے، لیکن ہمارے لڑائی کی ہتھیار جسمانی نہیں ہے، بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کی قابل ہیں۔ آمین۔ آئیے ان ہتھیاروں کو استعمال کریں اور ان بڑے بڑے قلعوں کو جو ابلیس نے خاندانوں کے اندر، زندگیوں کے اندر گاڑ رکھے ہیں، ان کو یسوع کے نام سے ڈھانا شروع کریں، ان کو یسوع کے نام سے پست کرنا شروع کریں، ان کو یسوع کے نام سے برباد کریں، ان کو یسوع کے نام سے ان پر فتح پائیں، اور ہمیں ان پر غالب آنا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے حضور ان ہتھیاروں کو ابلیس کے لیے استعمال کریں اور اپنا دفاع کریں۔ یہاں پر میں بتانا چاہوں گا، خدا کے بندہ مقدس ایوب نے اپنا اور اپنے گھر کا دفاع کیا تھا۔ یاد ہے کسی کو؟ چاروں اطراف سے خدا نے اس کو لپیٹا، باڑ لگا دی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا دفاع کیا تھا، اس نے اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا، اپنے بال و معیشی کا اور ہر چیز کا اس نے دفاع کیا تھا۔ اور ابلیس خود اقرار کرتا ہے کہ خداوند تو نے تو اس کے گھر کے چاروں طرف کیا ہے؟ باڑ لگائی ہے، جس کے سبب سے میں اندر گھس نہیں سکتا، میں اس دیوار کو پار نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنا دفاع کیا تھا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم آخری دور کے اندر یا موجودہ دور کے اندر یا اس وقت جب ہم زندگی کو بسر کر رہے ہیں تو ہم اپنا دفاع کریں، اپنے گھر کا، اپنے گھر کے ہر ایک چیز کا، اپنی چوکھٹوں کا، دروازوں کا، کھانے پینے کا، کچن کا، دولت کا، اور پھر ہر ایک چیز کا ہم اپنا دفاع کریں۔ اگر نہیں کرتے تو پھر ابلیس کو موقع ملے گا، پھر وہ ہمیں بے سکون کر دے گا، بے آرام کر دے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم، خدا نے جو ہمیں طاقت بخشی ہے، خدا نے جو ہمیں قدرت دی ہے، خدا نے جو ہمیں بلیس کیا، خدا نے جو ہمیں کلام کی قدرت کے ساتھ نوازا ہے، اس کو استعمال کریں۔ اور جو خدا نے ہمیں روحانی طور پر ہتھیار دیے ہیں، ان کو جب ہم استعمال کریں گے تو یقیناً لکھا کہ ابلیس کا تم مقابلہ کرو، ابلیس تم سے کیا ہے؟ بھاگ جائے گا۔ ابلیس کا کیا کرو؟ مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ تو ہمیں جب ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں، اگر ہمارے پاس تو ہتھیار موجود ہیں تو پھر ابلیس پھر کیا ہے؟ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، جسمانی طور پر جو روحانی طور پر ہمارے پاس جو ہتھیار نہیں ہے، تو اگر نہیں ہے تو پھر ابلیس کے ساتھ مقابلہ ہم کیسے کر سکیں گے؟ ضرورت ہے کہ ہم پہلے نمبر پر اگر اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سیو کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو سیو کرنا چاہتے ہیں، اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور ان ہتھیاروں کے ساتھ اپنے آپ کو لیز کر لیں، اپنے آپ کو معمور کر لیں، اپنے آپ کو ان لیزوں کے ساتھ بھر دے، تاکہ ہم پھر اپنا دفاع کر سکیں، اپنے خاندان کا، اپنے بچوں کا، گھر کی ہر ایک چیز کا ہم دفاع کر سکیں۔ ضرورت ہے۔ پالوس رسول یہی کرنتھس کی کلیسیا کو 10ویں باب کے اندر یہ فرماتا ہے کہ گو ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں، ہماری زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہے اور یہ گزر جائے گی، لیکن یاد رکھیں ہم زندگی تو جسم میں گزار رہے ہیں، لیکن ہمارے جسم کے طور پر مگر جسم کے طور پر ہم نہیں لڑتے، بلکہ ہمارے پاس لڑائی کے کچھ اور ہی ہتھیار ہیں، اور وہ ہے دعا، خدا کا کلام ہے، پھر اس کے بعد نجات کا خود ہے، پھر اس کے بعد اور پالوس رسول نے یہ ہتھیار ہمیں دیے ہیں، بتائے ہیں، ان کو استعمال کرنا ہے۔ جب ہم استعمال کریں گے یقیناً خدا کے حضور ہم فتح پائیں گے اور ابلیس کو ہرا دیں گے، ابلیس کے قلعوں کو ہم ڈھا دیں گے، اور تب ہٹائیں گے جب ہم اپنے خاندان کا دفاع کرنا شروع کریں گے، پھر ہم ابلیس کی قوتوں پر ہم غالب ہیں گے۔ آج بے شمار زندگیاں پریشان مایوس ہیں، اور وہ اس لیے مایوس ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا دفاع نہیں کیا، اپنے گھر کا دفاع نہیں کیا، اپنے بچوں کا، اپنے خاندان کا، اپنے مال کا، اپنے کچن کا نہیں کیا، اس لیے
وہ پریشان ہے اور ہر لحاظ کے ساتھ پریشان ہے، لیکن یاد رکھیں خدا نے ہمیں قوت دی ہے، زور دیا ہے، معموری دی ہے، اور ہمیں جو ہتھیار دیے ہیں وہ کلام مقدس کے اندر موجود ہے۔ ہمیں ان ہتھیاروں کو استعمال کرنا ہے، ان ہتھیاروں کو استعمال کر کے ابلیس کی ساری قوتوں پر غالب آنا ہے، تاکہ ہم ہمارا اور ہماری زندگی کا، ہمارے گھر کا مکمل طور پر دفاع سکے۔ تو پالوس رسول فرماتے ہیں کہ جب ابلیس سر اٹھاتا ہے تو پھر لکھا کہ جو ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہے ڈھا دیتے ہیں۔ آمین۔ جو بھی ابلیس خدا کے لوگوں کے خلاف سر اٹھاتا ہے، چرچ کے خلاف سر اٹھاتا ہے، لوگوں کے ساتھ خدا کے لوگوں کے برخلاف سر اٹھاتا ہے، تو خدا کے لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کو خدا کے پاک روح کی قدرت کے وسیلہ سے اور ان روحانی ہتھیاروں کے سبب سے اس کے سر کو کیا ہے؟ کچل دیتے ہیں، اور پھر ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے گھرانوں کا، اپنی زندگیوں کا دفاع کریں، تاکہ ہم ابلیس کے ہاتھوں سے، ابلیس کے منصوبوں سے، ابلیس کی چالوں سے ہم بچ سکیں، اور ہمارے خاندانوں کے اندر خدا کی برکت ٹھہری رہے، خدا کی سلامتی ٹھہری رہے، خدا کا اطمینان ٹھہرا رہے، ہماری زندگی کے اندر وہ بلیسنگ جو خدا نے ہمیں دی ہے ہمیشہ تک قائم رہے، اور تب قائم ہوگی جب ہم اپنا دفاع کریں گے اور کرنا ہم جانتے ہوگے، تب ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر خدا کی قدرت کو دیکھیں گے، اور خدا کے حضور ہم ان قلوں کو جو ابلیس نے ہمارے خلاف اٹھائے ہوئے ہیں یا گاڑے ہوئے ہیں، ان کو یسوع کے نام سے ہم ڈھا دیں گے۔ آمین۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، دعا کریں گے، اور اپنے آپ کو خدا ان کے زدائیے اور اپنی آنکھوں کو بند کرنا شروع کیجیے، اپنی آنکھوں کو بند کرنا شروع کیجیے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے خداوند کے زور، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے خدا کے زور، اور خداوند کے زور دعا کرنا شروع کیجیے۔ ہاللیلویہ۔ راکا سندھا راکا سندھا۔ آئیے دعا کرنا شروع کریں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ ہم آپ کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے آپ مل کر دعا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ایک ایک مشکل کے لیے، آپ کی ایک ایک فکر کے لیے، آپ کے ایک ایک پرابلمز کے لیے ہم خداوند کے زور دعا کرنا چاہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ راکا سندھا رابا تالا را، یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے ہم خداوند کے زور آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، ہر ایک ایک فرد کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، یسوع کے نام سے۔ ہاللیلویہ۔ ربا تارا، یسوع کے نام سے ہم ان قلوں کو یسوع کے نام سے ڈھا دیتے ہیں جو ابلیس نے آپ کے خاندانوں کے اندر قائم کیے ہیں۔ یسوع کے نام سے ان قلوں کو تیرے خداوند یسوع کے نام سے ہم ڈھا دیتے ہیں، ہم پست کرتے ہیں، ہم ان تمام پوشیدہ بیماریوں کو یسوع کے نام سے ہم کچل دیتے ہیں۔ آج شام روح القدس کی قدرت خداوند ہر ایک ایک کو چھونا شروع کرے، اور تمام ہیبتیں، تمام ٹینشنیں، تمام فکریں، تمام ابلیسی قوتیں یسوع کے نام سے زندگیوں کو چھوڑنا شروع کرے۔ ابھی اور اس وقت روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہر ایک جوا کھلنا شروع ہو، خدا تیرے بچے آزاد ہونا شروع ہو۔ اے خداوند وہ بیٹیاں جو بیماری کی صورت کے اندر اپنے گھروں کے اندر موجود ہے اور مایوس بیٹھی ہے، یسوع کے نام سے ان کی مایوسی تیرے نام سے ختم ہو جائے، اور ان تمام پوشیدہ بیماریوں کو یسوع کے نام سے ہم باندھ دیتے ہیں، خدا بدروں سے نکلنے کا حکم دیتے ہیں، اور روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے وہ بہنیں آزاد ہوں، بیٹیاں آزاد ہوں۔ اے خداوندوں کو خدا تیرا مسا زندگیوں کو چھونا شروع کرے، اے خدا گھرانوں کو چھونا شروع کرے، خدا قادر مطلق خدا تو رحم کر، فضل کر دے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ راکا سندھا، اے خداوند پاک خدا تو رحم کر، فضل کر۔ تاریکی کی وہ قوتیں جو تیرے لوگوں کو پریشان کرنے والی ہے، یسوع کے نام سے ساری ناپاک قوتوں کو یسوع کے نام سے ہم کینسل کرتے ہیں، ہم کینسل کرتے ہیں یسوع کے نام سے، جو سلامتی کے خلاف ہے، برکت کے خلاف ہے، رزق کے خلاف ہے، مال و دولت کے خلاف ہے، کچن کے خلاف ہے، صحت کے خلاف ہے، ان ساری ناپاک قوتوں کو یسوع کے نام سے باندھ دیتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ راسندہ راکا سندہ، ہاللیلویہ۔ بابا بابا راکا سندہ۔ ہر ایک ایک زندگی کو چھونا شروع کر، ہر ایک زندگی پر رحم کرنا شروع کریں۔ اے خدا ان تمام ناپاک قوتوں کو یسوع کے نام سے ہم کچل دیتے ہیں۔ اے خدا تیری سلامتی گھرانوں تک، خاندانوں تک، زندگیوں تک مانگتے چاہتے خدا رحم کر۔ ہاللیلویہ۔ راکا سندہ۔ ہم خدا کی خاتمہ کے ساتھ مل کر دعا کریں گے، اور خدا کی خاتمہ سے کہوں گا کہ آپ تمام بیماروں کے لیے جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں،
ان کے لیے، اور اس کے بعد پھر جو کشیدہ بیماری ان کے لیے، اور اسی طرح خدا ان کے حضور جنہوں نے درخواست سے پیش کیا آج شام، ان کے لیے خدا کے حضور دعا کریں گے، اور خدا کی خاتمہ سے کو وہ دعا میں رہنمائی کرنا شروع پریز ہالیلویا۔ قدوس زندہ آسمانی خدا، لشکروں کے رب، ایروبل کے خالق اور مالک، تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو جو تھا، تو جو ہے، تو جو آنے والا ہے خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے آج کے زندہ مقدس مؤثر کلام کے لیے خداوند، جو آج میری زندگی کے لیے تھا، جو تمام تر زندگیوں کے لیے تھا، جو ہمیں دیکھ رہی ہے اس وقت پاک خدا، ہم تیرے کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے اپنے خادم کو خوب اپنے جلال کے لیے استعمال کیا، اور تو نے اپنے جلال کو ظاہر کیا خداوند۔ یہ سارا فضل تیرا ہے، یہ سارا کرم تیرا ہے خداوند، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں پیارے خداوند۔ بے شک خداوند ہماری جنگ، ہماری لڑائی ان تاریکی کی قوتوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں خداوند۔ ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں ہے پاک خداوند، بلکہ خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں زندہ خدا، تیرے نام کی مدح سرائی کرتے ہیں پاک خداوند۔ تو ہی جلال کا بادشاہ ہے، تو جو قدرت سے معمور خدا، تو جو عزت اور حشمت کے لائق خدا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں پیارے خداوند۔ اس وقت خداوند تمام بہن بھائیوں کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں خدا، ان کے لیے تیری سلامتی کو چاہتے ہیں، زندگی کو چاہتے، عمر کی درازی کو، پیری کو چاہتے ہیں خدا، ان کو خوب اپنے جلال کے لیے استعمال کر خدا، اور خداوند دشمن ابلیس کے منصوبوں کو جو ان کی زندگی کے خلاف ہے، یسوع مسیح کے نام سے فیل کرتے ہیں خدا ان منصوبوں کو، اور تیرے جلال کو چاہتے ہیں۔ تو شفا کا منبع ہے خدا، ان کے لیے ہم تیری شفا کو چاہتے ہیں، ہر طرح کی بیماری خداوند، لڑائی جھگڑے کی تمام ناپاک قوتوں کو ہم یسوع مسیح کے نام سے چھڑکتے ہیں، اور ان کے گھرانوں سے جدا ہونے کا حکم دیتے ہیں خداوند۔ ان ساری اسپرٹس کو خداوند جو خداوند پریشان کرتی ہیں، جو زندگی میں اخلاقی کو پیدا کرتی ہیں خدا، ان ساری تصویروں کو ہم یسوع مسیح کے نام سے ختم کرتے ہیں خداوند۔ ان گھرانوں میں کام کر، ان زندگیوں پر خداوند تو اپنے جلال کو ظاہر کر خداوند۔ ان بہنوں کے ساتھ ہو خدا جو اس وقت پریشان ہے خداوند، مایوس ہے خداوند، ان کی مایوسی کو تو خدا ختم کر میرے پاک خدا، اور اپنے جلال کو ظاہر کر۔ یقیناً خدا تو عجیب اور جلالی کام کرتا ہے، تو اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا بخشتا ہے خدا، تو نے اپنے کلام کو نازل فرمایا ہے خدا، آج اپنی شفا بخش دے خداوند، ہر طرح کے جوؤں سے رہائی دے پاک خدا، ہر طرح کے جھگڑوں کو آزاد کر دے، رہا کر دے میرے پاک پتا، میرے پاک پروردگار، ہم تیرے حضور جھک جاتے ہیں، اور اس دنیا پر جو آفت ہے آ چکی ہے خدا، اس آفت سے بچا میرے پاک خدا، ہر ایک روح جان کو خدا، ہمارے ملک کو آزاد کر دے۔ ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے خدا سلامتی کی دعا چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے خداوند رہائی کی دعا کرتے ہیں، آزاد کر میرے پاک خدا، اور خداوند تو کاروبار کھول، جو اس وقت کاروبار سے پریشان ہے خداوند، جو گھروں میں محدود ہو کے رہ چکے ہیں خداوند، جو بیٹے بیٹیاں جاب لیس ہیں خدا، ان کو جاب بخش میرے خدا، تو کاروبار کھول، آسمانی خطے کھول دے، آسمان کے دروازے کھول دے میرے پاک خدا ان کے لیے۔ ہم تیری برکت کو، تیری بلیسنگز کو چاہتے ہیں، ہولی اسپرٹ ہم تیرے روح القدس کو چاہتے ہیں، ہاللیلویا۔ پاک روح تو آ، پاک روح ہم تجھے مانگتے ہیں، ان زندگیوں کے لیے تیری بلیسنگز کو چاہتے ہیں، تو کرم کر، فضل کر خداوندا، بے اولادوں کو اولاد دے میرے خداوند، اولاد کی برکت کو جاری کر دے خداوند، جن بہنوں کو خداوند ڈاکٹرز نے خداوند جواب دے دیا ہے خداوند، ان کو خداوند تو کبھی جواب نہیں دیتا، بلکہ تو اولاد دینے کی قدرت رکھتا ہے خدا، خداوند پیٹ کا پھل تیری طرف سے اجر ہے خداوند۔ ہم ان بہنوں کے لیے خداوند دعا گو ہیں، ان کی ساری پوشیدہ بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے بدنوں سے جاتی رہیں، تمام پوشیدگی میں ہونے والی ان بیماریوں کو یسوع مسیح کے نام سے ہم چھڑکتے ہیں خدا، بند رحم یسوع مسیح کے نام سے کھلیں، بند رحم یسوع مسیح کے نام سے کھل جائے خدا، اور وہ بہنیں شفا پائیں، ان بھائیوں کو بھی خدا تو برکت دے خدا، اور اپنے جلال کو ظاہر کر میرے خداوند۔ یقیناً خداوند
खुदावन जो तू कह देता है वो हो जाता है। इसलिए खुदा हम तेरे खादिमीन, तेरे खुदा बच्चे होते हुए खुदा तुझसे अपील करते हैं और इनके लिए दुआ करते हैं खुदावन। हम तेरी ब्लेसिंग्स को चाहते हैं खुदावन, हर तरह से खुदावन तो अपने बेटों पर अपने आसमान को खोल और बरकत को नाजिल फरमा खुदावन, और मोहब्बत को पैदा कर खुदावन। तेरे हुजूर और तमाम देखने और सुनने वालों पर खुदावन तेरी हजूरी ठहरी रहे, ताकि खुदावन ये इसी तरह से खुदावन तेरे साथ जुड़े रहे खुदावन, और खुदावन तेरी बरकत को रिसीव करते रहे खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। कल फिर हम इसी तरह से खुदावन किसी जगह पर मौजूद जब होते हैं तो तमाम बहन भाई खुदावन तेरी बरकत को रिसीव करें, कलाम को रिसीव करें, प्रस्तुश की बरकत को ले सके, दुआ के वसीला से बरकत को पा सके खुदा। इन खानदान और घरानों को बरकत देना और अपनी बरकतों से लबरेज करना खुदावन। तू अपनी नेमतों और बरकतों से खुदा इनको आसूदा कर मेरे खुदा, और हर तरह से अपने हाथ को तू बढ़ाए रखना, ब्लेस करना, कुव्वत बख्श, जलाल को जाहिर कर। मसीहा के पाक जलाली और सुंदर नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे अजीम नाम से, आमीन 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 आमीन। प्रेज़ हालेलुया। यकीनन आपने बरकत को रिसीव किया होगा, और हम ईमान रखते हैं कि खुदा ने आज के कलाम के वसीला से खानदानों के अंदर, जिंदगी के अंदर बरकत को ढेला है, और हम खुदा के ज़रूर इस बात के लिए खुदा के ज़रूर शुक्रगुजारी करते हैं। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ वक्त गुजारा है, हमारे साथ मिलकर वर्शिप की है, हमारे साथ मिलकर खुदा के कलाम की बरकत को रिसीव किया है। आप सब जितने भी देख रहे हैं खुदा आपको ब्लेस करें और आपकी बरकत की हदूदों को बढ़ाएं, और हम आपके लिए दुआ को हमेशा कि आप हमेशा खुदा के ज़ोर सलामत रखें। हमारे लिए भी दुआ करते रहें ताकि खुदा हमें इसी तरह अपने जलाल के लिए खूब इस्तेमाल करता रहे। और जब हम सारे मिलकर यकसा होकर एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो हम यकीनन हम बड़ी फतह को हासिल करते हैं। तो मेरे लिए, मेरी अहलिया के लिए, मेरे सारी फैमिली के लिए ज़रूर हर रोज़ दुआ किया करें और अपनी शख्सी दुआओं में हमें याद रखें, ताकि हम हर रोज़ खुदावंद के नाम को इसी तरह जलाल देते रहें। और कल हम फिर 7 बजे, ठीक 7 बजे आपके साथ मिलकर खुदावंद की इबादत करेंगे, सना करेंगे, और हमारे साथ हमेशा साथ मरा दे, हमारे साथ रहे मौजूद, ताकि हम खुदा के कलाम की बरकत को हम हर रोज़ सीखते रहें और बरकत को हम हासिल करते रहें। सो आइए, खुदा आपको ब्लेस करे और फिर मिलेंगे। खुदा आपकी हमेशा हिफाजत करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you. थैंक यू। प्रेज गॉड।